program is after completion of the program, you have to check that tools and simulators and open EP-Wave after run. Without this, your program will not showing any result. Okay? Understood? Understood? Hello? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Then एक प्रोग्राम यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे चेक करोगे. ऑलरेडी एक प्रोग्राम का कोड है, तो मैं तो यहाँ पे भी शेयर कर देती, बोले एक मिनट. Okay, I have sent that link to you also through this group. In the chat box, I have sent this link and I am opening this one. Okay, already one program I have run here, that is the AND gate, simple AND gate. I will explain this one, then you will use it for lab 5. Okay, AND gate. Acha, for AND gate, what are the, how many inputs are there? How many inputs? Hello, for AND gate, how many inputs? Tell me. 2 inputs. 2 inputs. Why we are taking so much of time for simple AND gate? Then 9 complements you can't do. So AND gate 2 inputs and 1 output. So here in the design entry, we will write module. This is the AND underscore circuit. That means module name. Then we will write here what? Output input. Instead of that one also, if you write only the bracket, then input AB, output C. Then close this bracket and semicolon. If you write in this way also, it can understand. हम लोग कॉपी में कैसे लिख रहे थे? मॉड्यूल का नेम, फिर आउटपुट इनपुट ऐसे लिख रहे थे, उसमें इनपुट आउटपुट को डिफाइन कर रहे थे, फिर सेमीकोलन क्लोज कर रहे थे. अगर तुम वैसे कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी लिखोगे तब भी वो कंसिडर करेगा. ओके, नेक्स्ट वन, देन बॉडी पार्ट ऑफ द सर्किट. Either 2 ways we can use. One is gate level, another is the data flow modeling. So यहाँ पे कौन सा मॉडलिंग यूज किया गया है? गेट लेवल या डाटा फ्लो? Gate level. Very good. So gate label मतलब and the name of that gate and output followed by the input. Then end module. जो तुम कॉपी में लिख रहे थे वैसे ही तुम डिजाइन एंट्री में लिखना. तो this part is all of you know. Most important part is the this side, that is the test bench type. And why it is named as test bench? That means we have to test. The bench means the platform where your program has written. Okay. तो उसको टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे? This program also, okay, this program also by writing the keyword module and end module we have to write. Then here it is written module TB for test bench. तो या इसका भी तुमको मतलब नाम देना पड़ेगा. जैसे कि यहाँ पे मॉड्यूल देन नेम ऑफ द मॉड्यूल, वैसे ही यहाँ पे मॉड्यूल TB देन उसका कोई भी नाम दे सकते हो. यहाँ पे अंडरस्कोर एंड कुछ लिखा है, तुम कुछ भी लिख सकते हो, बट TB मस्ट लिखना. देन दिस REG इज द इनपुट फॉर योर टेस्ट बेंच. मतलब टेस्ट बेंच पे हम क्या करेंगे? इनपुट देंगे, तो वो इनपुट हमारा ये इनपुट नहीं है. दिस REG इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस इनपुट एंड दिस इनपुट? ये इनपुट है तुम्हारा यूजर टू कंप्यूटर, बट दिस इनपुट इज नथिंग बट द from design entry to the test bench. Have you understood? Hello? Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जो REG है, REG के मतलब इनपुट कितना होगा? 2 होगा. तो वो हम डिजाइन एंट्री में हम लोग क्या लिखे? AB लिखे, लेकिन यहाँ पे टेस्ट बेंच में हम REG लिखेंगे एंड 2 इनपुट हम AB भी लिख सकते हैं, नहीं तो कुछ दूसरा पे इनपुट दे सकते हैं. So here we have taken the 2 different input, that is I_A and I_B. Okay. Then output को हम OR लेते हैं. This is not the OR of the design entry. This is something different. This is the output of the test bench. Okay. जो इनपुट में हम इनपुट लिखते हैं, आउटपुट लिखते हैं, तो जब डिजाइन टेस्ट बेंच में लिखोगे तो REG लिखोगे एंड OR लिखोगे. Then
and underscore circuit h underscore duty ia ib ic। अच्छा, अभी हमने इनपुट जब ले लिया, फिर हम तुमको पता है जो फंक्शन कॉलिंग पता है, एक फंक्शन को कॉल करते हैं, पता है कि नहीं? हेलो, यस मैम। तो दूसरी जगह पे फंक्शन लिखते हैं, वो फंक्शन का नेम यहाँ पे भी सेम होना चाहिए, तो हम उसको फंक्शन को कॉल करते हैं। लाइक दिस, हम टेस्ट बेंच में किस फंक्शन के या फिर किस सर्किट को इनपुट देंगे? एंड सर्किट। एंड सर्किट कहाँ पे लिखे हो? वो गेट लेवल वाले कोड में। हाँ, मतलब डिजाइन एंट्री पे जो लिखे हो प्रोग्राम, ओके, तो वो वाला टोटल कोड को हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे। सो फॉर कॉलिंग केसेस, so whatever the name of this design entry program and underscore circuit, we will also write the same name and underscore circuit. H underscore duty that can be written by, that can be selected by you. तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, that means that is the name of this circuit. एंड ड्यूटी इज डिजाइन अंडर टेस्ट, उसमें तुम ड्यूटी लिख सकते हो, नहीं तो एक्स भी लिखो, वाई भी लिखो, एच अंडरस्कोर ड्यूटी के बदले एक्स वाई जो भी लिखो, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मॉड्यूल, कुछ भी लिखो। देन इसमें क्या दिखा गया है? इनपुट आउटपुट एबीसी है, यहाँ पे इनपुट आउटपुट आई अंडरस्कोर ए, आई अंडरस्कोर बी, आई अंडरस्कोर सी। मतलब इस सर्किट में हम लोग अभी इनपुट क्या देंगे? इस सर्किट में, इस सर्किट को तुमने कॉल किया है किस, कहां पे? टेस्ट बेंच पे। तो अभी उस सर्किट में इनपुट क्या देंगे? इनपुट क्या है? आई अंडरस्कोर बी एंड वेरी गुड, वेरी गुड। आई अंडरस्कोर ए इनपुट, आई अंडरस्कोर बी इनपुट, आई अंडरस्कोर सी है तुम्हारा आउटपुट। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे? उसको मतलब सिमुलेशन स्टार्ट करेंगे। For simulation starting, we have to write initial, begin, dump file, dump.vcd, dump vars 0, h underscore duty. So ये जो है dump file, dump.vcd and dump vars means dump variables. So if we are writing these two lines, then that code will be dumped to produce the output waveform. Okay, so these two lines must, everybody should write these two lines. Then initial, begin. Initial क्यों होता है? Initial मतलब सिमुलेशन स्टार्ट हुआ, फिर begin मतलब तुमने जो एक्साइटेशन देना स्टार्ट किया, मतलब begin मतलब तुम अभी इनपुट दोगे 0 0 0 1 वो दोगे। तो ये जो आउटपुट वेवफॉर्म के लिए ये दो लाइंस। देन डिस्प्ले में तुम लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, दैट इज अप टू यू, बट दीज टू लाइंस मस्ट बी देयर। एंड एच अंडरस्कोर ड्यूटी जो लिखा है यहाँ पे भी वही, मतलब यहाँ पे अगर चेंज करोगे तो यहाँ पे भी वो चेंज करोगे। जो भी वेरिएबल्स लिए हो, इसी का नेम का वेरिएबल लिए हो, तो अगर ये चेंज करोगे तो ये भी चेंज करोगे। अभी क्या दिया गया है? #1 द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड मतलब टाइम डिले, मतलब अभी तुमने रेडी कर दिया, तुम्हारा सर्किट को रेडी है, इनपुट दोगे, तो जब इनपुट दोगे तो मे बी यू विल असाइन सम टाइम डिले। तो ये #1 मतलब हैश फॉर टाइम एंड 1 मतलब 1 नैनो सेकेंड या मिली सेकेंड। जो तुम ये जो कंपाइल डायरेक्टरीज में हमारा नैनो सेकेंड भी हम दे सकते हैं, मिली सेकेंड दे सकते हैं। तो कोई भी तुम मतलब तुम्हारा स्केल ले रहे हो, टाइम स्केल ले रहे हो, 1 मतलब 1 मिली सेकेंड और 1 नैनो सेकेंड। तो हम क्या करें? 1 मिली सेकेंड के, सपोज यहाँ पे हमने 1 मिली सेकेंड लिया है, तो 1 मिली सेकेंड के बाद हम लोग इनपुट को असाइन करेंगे। तो पहला इनपुट हमारा क्या होगा? कंडीशन क्या होगा? एंड गेट का जो पहला कॉम्बिनेशन क्या होता है? एंड गेट का पहला कॉम्बिनेशन क्या होता है? 0 0 0 0। तो इनपुट को दोगे, इनपुट है यहाँ पे क्या है? आई अंडरस्कोर ए है, आई अंडरस्कोर बी है, तो ये दोनों को असाइन करोगे 0 0 एंड दैट विल बी कंटिन्यू नेक्स्ट अनदर 1 मिली सेकेंड। फिर नेक्स्ट 1 मिली सेकेंड पे तुम्हारा क्या होगा? नेक्स्ट इनपुट दोगे, वो कंटिन्यू करेगा तुम्हारा नेक्स्ट 1 मिली सेकेंड तक। फिर तुम थर्ड कॉम्बिनेशन दोगे, वो कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट तक। फिर तुम नेक्स्ट दोगे, फिर नेक्स्ट तक कंटिन्यू करेगा।
देन फिनिश, जहां पे तुम्हारा बिगिन है वो फिनिश ही होगा। देन इनिशियल, इनिशियल में क्या है, इनिशियल जब किए हो तो उसको एंड करोगे, एंड मॉड्यूल लिखे हो तो उसका एंड मॉड्यूल लिखोगे। हैव यू अंडरस्टूड दिस टेस्ट बेंच या एनी डाउट? किसका डाउट है थोड़ा पूछो। किसी का डाउट नहीं है तो? Ma'am, what is हाँ, about that run time? We have ये जो to. टाइम जो हैश हैश वाला जो है, Yes, ma'am. हाँ, तो मैं दिखाऊंगी, वो रन करेंगे जब हम उसको देखेंगे, पता करेंगे, नहीं तो पता नहीं चलेगा। फिर यहाँ पे क्या है कि अगर तुम्हारा ये जो लिंक है, ये लिंक को तुम शेयर भी कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन दिस शेयर। ये जो है इसका, इसमें तुम इसका नाम भी दे सकते हो फॉर इजी टू रिमेम्बरिंग इन फ्यूचर। ओके, तो यहाँ पे तुम ये सेव के लिए है। फिर यहाँ पे जो ऑप्शन है पब्लिक, एनीवन विद द लिंक कैन व्यू, मतलब इसको तुम पब्लिक करना चाहते हो या फिर पर्सनल रखना चाहते हो तो प्राइवेट भी रखना चाहते हो, ओनली यू कैन व्यू। देन पब्लिश विल अपीयर इन सर्च रिजल्ट में भी तुम्हारा ये ओपन हो सकता है, तो उसमें तुम चेक सिलेक्ट करो कि क्या तुम करना चाहते हो। ओके, बाकी ये सब तो अभी हमारा जरूरत ही नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये प्रोग्राम हमने लिख दिया, अभी इसको सेव करेंगे। तो इन द सेव केसेस, अगर तुम्हारा प्रॉपरली सेव नहीं हुआ होगा तो एक एस्टेरिक सिंबल यहाँ पे आ जाएगा, अगर प्रॉपरली सेव हुआ है तो एस्टेरिक सिंबल नहीं आएगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वी विल स्टार्ट रन। तो रन में क्या होगा, ये तुम्हारा आउटपुट एक्सटेंडेड प्ले वेवफॉर्म तुम्हारा आएगा। एंड यहाँ पे देखो, चेक करो क्या दिख रहा है तुम्हारा। जब 0 सेकंड में हम लोग क्या दिए, इनपुट है तुम्हारा ए बी, आउटपुट है तुम्हारा सी। तो तुम बोलोगे कि मैडम हम लोग तो दिए I_A, I_B, I_C, तो इनपुट ए बी कहाँ से आया? ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन किसका है या नहीं है? समझ में आया? हेलो हेलो, Yes, ma'am. समझ में आया। हाँ, मतलब जब हम इनपुट आउटपुट क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को दे रहे हैं, कंप्यूटर से ले रहे हैं। इनपुट हमारा ए बी है, आउटपुट सी है, उसके अंदर कंप्यूटर वो यूज करा है I_A, I_B। वो कैसे कर रहा है हम लोगों को उसको, हम लोग को उसके इससे कोई लेना देना। हम लोग देखेंगे इनपुट मैंने ये दिया है तो आउटपुट मेरा क्या आना चाहिए। तो पहले तुम टाइम क्या दिए हो, जब तुमने स्टिमुलेशन स्टार्ट किए पहले 1 सेकेंड तुम दिए हो, डिले दिए हो कि नहीं प्रोग्राम में? #1 दिए हो, मतलब 1 सेकेंड तक कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, बिकॉज यू हैव नॉट गिवन एनी इनपुट। तुम इनपुट दिए हो, अरे स्टार्टिंग से तुम इनपुट दे दिया, फिर #1 के बाद इनपुट दिए हो? मैम #1 के बाद, तो #1 मतलब 1 सेकेंड। यहाँ पे देखो टाइम दिया है सेकेंड, 0 सेकेंड से लेके 6 सेकेंड तक। तो पहला 1 सेकेंड तक तुम्हारा कोई चेंजेस नहीं, बिकॉज मेरा तो स्टार्टिंग ही नहीं हुआ, इनिशिएशन तो मतलब मैं तो इनपुट ही नहीं दूंगी तो क्या आउटपुट देखूंगी। ओके, तो जब तक 1, ये है 0, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, ये 6 है सेकेंड। तो 0 to 1 तक तुम्हारा कोई चेंजेस नहीं है। 1 पे यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे 1 में तुम अभी इनपुट क्या दिए, इनपुट क्या है? 0 0 0, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? 0 तो आउटपुट सी में भी क्या दिख रहा है? 0 0। तो ये तुम्हारा है पहला आउटपुट ऑफ AND गेट। जब 0 0 देते हो तो 0 मिलता है। तब तुम फिर से क्या लिखे हो, उसके बाद फिर #1 लिखे हो कि नहीं? यस मैम, मतलब वो जो आउटपुट है वो रहेगा, नेक्स्ट 1 तक रहेगा, मतलब यहां तक वही तुम्हारा सेम रह रहा है। हैव यू अंडरस्टूड या समझे नहीं? यस मैम, समझ में आया। समझ में आया। फिर नेक्स्ट 1 तक तुम फिर से 1 दिया है, दिए हो कि नहीं? ये प्रोग्राम दिखाऊं यहाँ पे क्लोज बटन कहाँ है? ये शायद क्लोज बटन है ना। क्लोज,
तुम प्रोग्राम देखो, प्रोग्राम में तुम्हारा फिर से 1 है, तो फिर से जब तक 1 नहीं आता है मेरा चेंजेस नहीं होगा। फिर नेक्स्ट 1 में तुम्हारा चेंजेस हो रहा है। क्या चेंजेस हो रहा है? जी एक्साइटेशन क्या दे रहे हो? 0 1 दे रहे हो, तो 0 1 के टाइम पे आउटपुट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। वो आ रहा है कि नहीं? देखो 0 1 में 0 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? यस मैम। वो फिर नेक्स्ट 1 तक चलेगा क्योंकि तुमने फिर से डिले दिए हो नेक्स्ट 1 तक, तो नेक्स्ट 1 तक ये नेक्स्ट 1 तक यही रहा। फिर यहाँ पे तुम्हारा चेंजेस फिर स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिए? 1 0 दिए, तब 1 रहा। फिर क्या होगा? नेक्स्ट 1 में 1 1 दिए, तो वो तुम्हारा 1 है। तो टाइमिंग का जो एक्सप्रेशन है, अभी अंडरस्टूड टाइमिंग का एक्सप्रेशन? समझ पा रहे हो कि नहीं? वो जो टाइम डिले जो #1 है उसको अगर तुम चेंज करोगे 3 या 2 चेंज करोगे, अकॉर्डिंगली तुम्हारा वेव फॉर्म का रिजल्ट भी चेंजेस होगा। व्हाट इट? फिर तुम जो ऊपर #1 है नीचे भी #1 है, वो तुम दे सकते हो नहीं दे सकते हो, वो डिपेंड करता है तुम्हारा वेव फॉर्म के ऊपर। तुम वेव फॉर्म से वो वेरीफाई कर सकते हो। ओके, have you understood? I have sent that link. All of you check that one. Whatever your doubt, first clear. Then just show me the expression of W, X, Y, Z in case of 9th complement. Then I will show the program for the 9th complement. वो दिखाने के बाद मैं प्रोग्राम दिखाऊंगी। समझ में आया? समझ में आया? यस या नो बोलो तो। यस मैम। करो, पहले इसको रन करो, आउटपुट देखो तुम्हारा भी वही आ रहा है कि नहीं। ये आने के बाद फिर WXYZ का एक्सप्रेशन निकालना। शुभम कुमार, शुभम कुमार, तू क्या लिखे हो मिसेस पे? And have you got the result of AND gate? मैम कैन यू विजिट विदाउट लॉगिन ईमेल आईडी? नो, लॉगिन करना पड़ेगा, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। पहले उसको लॉगिन करो। तुम लोगों का भी माइक काम नहीं कर रहा है। व्हाई यू आर राइटिंग इन द मैसेज? सेम आउटपुट मतलब
डिफरेंट मिलना चाहिए था क्या? No, ma'am. हाँ? मतलब आया। Yes, ma'am. वही बोल आ गया. तो ठीक है, अभी ये करो, WXYZ का एक्सप्रेशन दो, दिखाओ मुझे। क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है, तो मुझे एक्सप्रेशन दिखा दोगे तो मैं उसका प्रोग्राम दिखा दूंगी, रन करके आउटपुट देख लेंगे, पहला वाला। जल्दी पुरस। Ma'am. हाँ, वो WXYZ का एक्सप्रेशन दिखाओ। Yes, ma'am. Ma'am कर रही हूँ. W का एक्सप्रेशन किसका आया? हेलो, W का एक्सप्रेशन किसका आया? A dash B dash C. A dash B dash C और A dash B dash C dash। C dash. That we can write that A plus B plus C bar। Yes, ma'am. तो उसको हम लिखेंगे नॉर W A B C। ओके, फिर X का निकालो। What is the expression of WX? A dash B XOR C. A dash B XOR C और B XOR C। Ma'am, A dash 4 into B XOR C. नहीं, B XOR C आया होगा। Others are not doing? Why only one student will answer?
Hello. What happened to others? Am I audible? Yes, ma'am. So why not you respond me? You are not getting the expression of the 4 output. Only one student is responding, others are totally silent. Pushpendra? Pushpendra, Yes, ma'am, doing. so share your screen. What you are doing, just share your screen. Okay, ma'am. You are not able to share your screen, you are not able to find the expression, then how we will complete this lab? Next class, I will mark according to your performance in the lab. Okay? जो जितना respond करेगा उसका marking वैसे ही होगा. Soumya, Yes, ma'am. what is the expression of x? मैम एक्सप्रेशन में नहीं निकाल पा रही. क्यों? आज तक नहीं कर रही थी लैब? मैम कर रहे थे लेकिन नहीं तो? हो रहा. अगर तुम एक्सप्रेशन नहीं निकाल पा रहे हो तो क्या कर रही थी, कैसे कर रही थी? Uras, share your screen. Ma'am, I'm doing in copy. Yeah. अपना स्क्रीन शेयर करो, अपना कॉपी में जैसे एक्सप्रेशन लिखे हो वो दिखाओ. Okay, ma'am. मानस, मैम आपने शेयरिंग स्टॉप नहीं किया है. व्हाट? आपने मैम शेयरिंग स्टॉप नहीं किया है, इसलिए वो नहीं शेयर कर पाएगी. अच्छा अच्छा, मैं स्टॉप करूंगी तो. हाँ.
अर्णव दत्ता, अर्णव दत्ता, Yes, ma'am. क्या हुआ? There तुमने is कुछ no हाँ there is no power connection. So I cannot share anything. कॉपी में लिखने के लिए पावर की जरूरत होता है? लाइट ही नहीं है, लिखेंगे कैसे? दिन में भी लाइट की नहीं वजह से तुम कुछ नहीं लिख पा रहे हो? इधर वेदर बहुत खराब है मैम, पूरा का पूरा अंधेरा हो गया है। कहाँ पे? जमशेदपुर। मतलब अंधेरा मतलब क्या हो गया है? थोड़ा सा वेदर बाहर- कंडीशन तो बाहर पूरा बारिश वारिश हो रहा है वैसा टाइप का, तो लाइन ही काट दिया है। अंधेरा अंधेरा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये लैपटॉप से टॉर्च का अरेंजमेंट करके भेजो। अरे कॉपी में तुम एक्सप्रेशन तो लिख के बताओ। मैम ए डैश बीज और सी आ रहा है। ए डैश मैम बीज और सी, मैम एक्स का एक्सप्रेशन। डब्ल्यू का डब्ल्यू का ए डैश बी डैश सी डैश। वाई का वाई का आ रहा है ए डैश सी, और जेड का आ रहा है डी डैश होल इनटू ए डैश प्लस ए बी डैश सी डैश। नो नो नो, तो गलती। तुमने डोंट केयर के कंडीशन यूज किए है? डोंट केयर नहीं तो बताऊं। बाकी जो है 9 के बाद जो जो एक्सप्रेशन है उसमें डोंट केयर यूज करोगे ना, फिर उसको कंबाइन करके करोगे क्योंकि ठीक है मैम। तो मैम मैंने भी वैसे किया था मैम, उसमें अभी देखो अभी तो टाइम है हो गया है, बस मैं ये बोल देती हूँ कि अपना एक्सप्रेशन लिखो और चेक करके मुझे नेक्स्ट क्लास में सब अपना एक्सप्रेशन दिखाना, फिर हम प्रोग्राम करेंगे। 3 का ऑब्जेक्टिव का सारे का एक्सप्रेशन मुझे चाहिए, तो पहले एक्सप्रेशन चेक करूंगी फिर प्रोग्राम देखूंगी। तो देखो W है A B C होल बार which is nothing equal to A bar dot B bar dot C bar. X expression is B XOR C. Y expression is C and C. Okay. And then not your Z expression is D bar. ये तुम्हारा आएगा। और ये डिजाइन एंट्री में ऐसा प्रोग्राम लिखोगे तो ये टेस्ट बेंच पे तो रजिस्टर आरईजी कितना होगा? आरईजी कितना होगा? वहां पे तुमने I_A, I_B, I_C ऐसे लिए थे कि नहीं? यस मैम। लेकिन यहाँ पे भी तुम ABCD भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इनपुट यहाँ पे लिखते हैं, उस इनपुट के बदले तुम REG लिखोगे। तो REG इनपुट 4 इनपुट है, ABCD लिख सकते हो। OR 4 आउटपुट है, WXYZ लिख सकते हो। फिर हम क्या करेंगे? फंक्शन कॉल करेंगे। तो ये फंक्शन को हमने कॉल किया तो इसका नाम क्या है? फॉर्मूला है, तो इसका नाम भी फॉर्मूला। फिर ये तुम्हारा नेम है G, जहां पे H_DUT था। जब ये G मैंने चेंज किया है तो G कॉमा स्क्रीन शेयर नहीं किया है फिर से। ओके ठीक है, तो अभी स्क्रीन शेयर करके भी इतना समझाऊंगी, लेकिन तुम तो अभी कर रहे हो तो तुम नहीं मैंने आंसर नहीं दे रहे हो, तो इतना समझाऊंगी लेकिन नेक्स्ट क्लास को नहीं कुछ करोगे। तो नेक्स्ट क्लास को तुम्हारा विदिन 1 आवर तुम्हारा सबका जो डिजाइन एंट्री और टेक्स्ट बेंच, मैं ये वाला 9th कॉम्प्लीमेंट वाला मैं भेज देती हूँ, लिंक भेज देती हूँ। वो तुम डिजाइन ये बाइनरी टू ग्रे कोड का और 2 बिट का उसी हिसाब से करना। ये वाला ओके ये लिंक मैंने भेजा है 9th कॉम्प्लीमेंट का। ऑल ऑफ यू चेक दैट वन अकॉर्डिंगली। बाइनरी टू ग्रे कोड और जो 3rd ऑब्जेक्टिव है 2 to स्क्वायर, 2 इनपुट एंड स्क्वायर, उसका तुम्हारा कंप्लीट होना चाहिए। फर्स्ट 1 आवर जो नेक्स्ट लैब का वो ओनली लैब 5 का कंप्लीशन होगा, क्योंकि लैब 6
अदर सेक्शन में स्टार्ट भी हो गया है. ओके, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So thank you all. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.